हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल नंबर 14 आपने कर दिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 15 में हम एक बार देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज increase continuously at the proportional to the number of its inhabitant person at any time। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट population of a village is P at a time T। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ P dP by dt is proportional to P, so dP by dt is equal to K into P। dP upon P is equal to K dt, variable separable, taking integration both the sides, K dt log P is equal to KT plus C, ये होगा। if the population of village was 20,000 in 1999, तो उसे हम कहेंगे इनिशियल ईयर 1999 कंसिडर एज बेस ईयर और इनिशियल। તો તે આના પછી 7-10 લીટર હશે પેલો 7-10 2020 એમાં આવ્યું છે। તો છેલ્લો આપણે 9/1/2020માં બનાવ્યો છે। એના પછી જનરલ મીટિંગ બનાવવાની ખાલી। પણ હવે લોકડાઉન મીટિંગ બોલાવવાની જ નહીં આપણે। ગોઠવીએ તો ફેબ્રુઆરીમાં ગોઠવી નાખવાની, કાં તો 10 માર્ચે ગોઠવી નાખવાની, પછી નહીં ગોઠવીએ। લોકડાઉન થી ગમે ફેબ્રુઆરી એન્ડમાં માર્ચ એન્ડમાં માર્ચ 22 તારીખે લોકડાઉન થઈ ગયું ને। માર્ચ 22 એટલે આપણે તો બોલાવે જ નહીં। હા 10 તારીખ ગોઠવજો ચાલે, માર્ચની 10 તારીખ જેવું। જુઓ કેલેન્ડર શું હતું આપણે પાસ કોઈ નથી। એક્ઝામ હતી પણ ત્યારે માર્ચમાં એટલે ગોઠવાય નહીં। એના પછી ડાયરેક્ટ જ આપણે લેવા પડે પેલું ઓક્ટોબરમાં। અને ફાલ્ગુની મહિનો જે છે એટલે નવા પ્રિન્સિપલ નો લેટર એ તો આપણે આની સર આપી દેવાની ને જરૂર। હા જરૂર આપવાની, આને ના આપી દે એટલે પણ જેવું સર હા આના નહીં આપે ને સાઈન આવી ગઈ ને આને જરૂર છે ને પછી નવો એક ઓરિજિનલ સિક્કો મારી દો સાઈન કરી દે બસ। પેલાનો લેટર ઠરાવ 25% લખેલો જ છે મેં મારો ઠરાવ બુકમાં નહીં તો આમાં લખીને પછી એને ઝેરોક્ષ આપવાની ઠરાવને કે સ્કૂલ ના પર આપવાની। લેટર પીડાવો તો ચાલશે, આ ઝેરોક્ષ ના આપો તમે, આ તો આપો એટલે લીગલ દેખાય બનાવીશ તમે। આ એક ને પેલાનો લેટર પેડ પર આપે 25% વાળો બંનેનું કોમન આપો। આ એ લેટર પીડાવો આ ઠરાવ નંબર આ ઠરાવ નંબર આ છે, બંને લેટર પેડ આપી દો ચાલશે। પણ પેલો ઠરાવ નંબર પાડવો પડે, પણ એમ ગમે તેમ નહીં થવાનું તમારે। એમાં અમે ડેટ લખી આપો ને તે ડેટ આમાં પાડવાની પછી। હા એમ એટલે હજુ જોઈ લેજો, બીજો વચ્ચે પાછા તે લખેલું ઠરાવ જો અહીંયા પણ પછી તમે કેન્સલ કરી લો ને શું છે આ તો ઇલેક્શનમાં વાલી મંડળની રચના બધું કરવાનું આવેલું હતું ને પછી ના પડે એટલે બનાવ્યો નહીં। વાલી મંડળની રચના કરવાની પેલો આપણે એક વાલી ચૂંટાવેલો હતો એના માટે એના માટે ઠરાવ કરવાનો હતો ને પછી આપણે કેન્સલ રાખ્યું નહીં કરવાનું કેમ નહીં ખબર જરૂર નિયમ કીધું તમે એટલે ઉતાવળ ના કરતો તારીખોમાં પહેલામાં આ કેન્સલ કરીએ તો પછી પેલું જ આવી જાય પછી તો લોકડાઉન આવે એટલે પછી કોઈ આવવાનું વિચાર જ નહીં મળે।
અરે તો સર લોકડાઉન 7-10 લીટર છે પીવે ટાડાનો 7-10 પછી અઠવા બે જવાનું બેડ દેવાનું. इसे हम इनिशियल ईयर समझेंगे. उसमें t इज इक्वल टू 0, तो पॉपुलेशन की जो क्वांटिटी है वो 20,000. सो अच्छा, हम यहाँ से एग्जाम्पल को आगे नहीं बढ़ाएंगे दोस्तों. हमारी जो कॉमन मेथड है हम वही मेथड से इसे फॉलो करेंगे, बीच में से आगे नहीं बढ़ेंगे. क्या मेथड है? सो p इज इक्वल टू ई रेज टू के टी प्लस सी वन इज इक्वल टू ई रेज टू के टी इंटू ई रेज टू सी वन. इसके बदले नया कोई कांस्टेंट, सो p इज इक्वल टू ई रेज टू के टी इंटू सी, इक्वेशन नंबर 1. इनिशियली t is equal to 0 time for population 20,000. So 20,000 is equal to e raised to 0 into c. Therefore c is equal to 20,000. Clear? Now p is equal to 20,000 into e raised to kt, equation number 2. क्लियर दोस्तों? अब हम क्या करेंगे, तो इन 2004 पॉपुलेशन बिकम 25,000. तो इसका क्या मतलब हुआ, कितने ईयर इंक्रीज हुआ टाइमिंग, तो 1999 से 2004 यानी कि 5 इयर्स. तो यहाँ पर टाइमिंग हुआ 5 इयर्स, तो पॉपुलेशन है 25,000. इट मीन्स 25,000 is equal to 20,000 into e raised to k into 5. Cancel 5 5s and 5 4s. E raised to k into 5 is equal to 5 upon 4. Therefore 5k is equal to log 5 upon 4 base e. So k is equal to 1 upon 5 log 5 by 4 to the base e. ये वैल्यू रहेगी. चलिए क्लियर दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. तो अब क्या कहा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इन 2019. 2019 के लिए समय कितना होगा, तो समय होगा 10 इयर्स. कैसे, तो 2009 माइनस 1999, तो ये वैल्यू होगी 10 इयर्स. और t इज इक्वल टू 10 इयर्स पर पॉपुलेशन क्या होगी. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2, p इज इक्वल टू 20,000 into e raised to k and 5 is what, sorry t, ये है 10. देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे. अब हमारे पास में देखिए 5k की वैल्यू है, 5k e raised to 5k. लॉग ऐसा कुछ लेंगे नहीं, सीधी पावर 2 करेंगे, तो 2 5 10, तो ये 10 के में मिल चुका है. सो 20,000 इंटू ई रेज टू 5k का मतलब है 5 upon 4. तो यहाँ पर हमें लेना है 5 upon 4 होल स्क्वायर. देयरफॉर 20,000 इंटू 25 upon 16 है ना. ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे. 4 4 कहेंगे, 4 5 20 0 0 0. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले, फिर 4 से डिवाइड करेंगे. यस, 3 1 2 5 0
ये होगी पॉपुलेशन। चलिए दोस्तों, ये क्लियर है? क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर, हेलो डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 16 आप खुद प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू नंबर 17 जो है वो इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए हम कह सकते हैं डी एक्स अपन डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। हमने जो जनरल फॉर्मूला देखा था उसमें डी वाई बाई डी एक्स था, लेकिन यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई है। इसका ये मतलब हुआ पी वन एंड क्यू वन आर फंक्शंस ऑफ y, ये y के फंक्शन है। तो इसका ये मतलब हुआ, इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे? जनरल सॉल्यूशन के लिए इसका इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा e रेज टू पी वन डी वाई होगा, उसमें हम लेते थे पी वन डी एक्स। सो फंक्शन में आएगा पहले y, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी वन डी वाई, इंटीग्रेशन में आएगा क्यू वन इंटू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी वन डी वाई, और यहाँ पर हम क्या लेंगे? dx नहीं लेंगे, लेकिन लेंगे dy प्लस c लेना है। तो ऐसा ऑप्शन आप ध्यान से देखिए आपको कहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन। सही ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमें, अच्छा यहाँ पर हमें लेना है x, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा सही ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी में इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, क्या आप सभी क्लियर है यहां पर? नाउ लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 18। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e raised to x dy y into e raised to x plus 2x dx is equal to 0 is blank। अब ध्यान से देखिए, e raised to x dy is equal to minus 2x plus y e raised to x dx। y एंड x को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x y इंटू ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स से दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ई रेज टू एक्स कैंसल, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x ई रेज टू माइनस एक्स। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पर p इज इक्वल टू -1 एंड q इज इक्वल टू -2x e रेज टू माइनस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन p dx -1 dx, इसका मतलब है e रेज टू माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइंग विद दिस वैल्यू, सो वी विल गेट y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x into e raised to minus x already present into e raised to minus x। कुछ गलती है यहाँ पर? हाँ दोस्तों, एक गलती है ना? आपने क्यों नहीं पहचानी भाई? अच्छा, क्या गलती है? जैसे माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ यस, ये बात आपको समझनी अच्छी तरह से। ये वैल्यू माइनस होगी, यहाँ पर प्लस,
p इज इक्वल टू 1, तो e रेज टू एक्स रहेगा, e रेज टू एक्स, और ये होगा यहाँ पर e रेज टू एक्स एंड e रेज टू माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, आप भूलना नहीं है दोस्तों, है ना। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू एक्स, तो मल्टीप्लाई करके हमने इसे अरेंज किया है। यहाँ पर ये दोनों टर्म कैंसिल होगी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स y इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसल, y इंटू ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। टू कैंसल, y इंटू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर is equal to C. It's a general solution of the given differential equation and ये ऑप्शन जो है जो करेक्ट इन ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, क्लियर है, एकदम से क्लियर, ओके। इसी चैप्टर के थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हम आज देख ही लेते हैं, इसीलिए चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना दोस्तों। इस चैप्टर की अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। अब हम बात करते हैं इसके एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन पर। चलिए, हमारे पास में इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर इज इक्वल टू ब्लैंक एंड डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक। चलिए, ऑर्डर क्या होगी यहाँ पर, तो मैक्सिमम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इज 2 एंड इसकी ही पावर की हम बात करेंगे तो पावर 1 है, सो डिग्री इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री देखिए दोस्तों, ऑर्डर इज 2 बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये एग्जैक्टली पोलिनोमियल टर्म्स नहीं है। एकदम से क्लियर। दूसरा, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब एंड होल रेज टू 2/3 इज इक्वल टू एक्स इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है, दोनों में आंसर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर क्यूब रूट नहीं चलेगा, तो दोनों साइड क्यूब लेंगे, तो यहाँ से क्यूब निकल कर यहाँ पर क्यूब होगा। अब यहाँ पर ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इज 2, है ना, मैक्सिमम लेवल का डेरिवेटिव यही है और उसकी पावर 3 है, सो डिग्री इज इक्वल टू 3। दोस्तों, क्या क्लियर है यहाँ पर, डिग्री और ऑर्डर क्लियर है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। इन डिफरेंशियल इक्वेशन, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इन डिफरेंशियल इक्वेशन क्यूब रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 हैविंग ऑर्डर a and degree is b, then a plus b is equal to blank।
तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, ये हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यूब रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 4 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, एक साइड लिखेंगे, दोनों ही साइड हम क्यूब करेंगे, क्या क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है। सो डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब रूट का जो है क्यूब लेंगे तो वो पावर कैंसिल और 1 पावर रहेगी। 7x प्लस 4 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर 3। तो यहाँ पर डिग्री ऑर्डर जो है वो ए है, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है तो 2, डिग्री जो है वो है 3। क्या आप समझ रहे हैं? सो a प्लस बी इज इक्वल टू, आंसर इज 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए क्लियर दोस्तों। इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें यहाँ पर y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू कॉस x प्लस c3 माइनस c4 ई रेज टू x प्लस c5 है। देन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ब्लैंक। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट में दिखाई देते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, C1 C2 C3 C4 एंड C5। ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह देखिएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर C1 प्लस C2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लेकिन दोनों का समेशन है। समेशन करने से उन दोनों के बदले कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है, तो हम कॉमन ले रहे हैं C डैश, ध्यान दीजिएगा, इंटू कॉस x प्लस C3 माइनस C4 ई रेज टू हम x कहेंगे इंटू ई रेज टू C5 कहेंगे। अब देखिए पूरा टर्म कांस्टेंट है, उसके बदले हम कोई नया कांस्टेंट लेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। सो y इज इक्वल टू C डैश इंटू कॉस x प्लस C3 माइनस C4 ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू C5 के बदले हम C डबल डैश लेंगे। चलिए C डबल डैश इंटू C4, तो C डैश इंटू कॉस x प्लस C3 माइनस इनके बदले C ट्रिपल डैश एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, है ना दोस्तों। तो फाइनली रीजनेबल है ना, यहाँ पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 1 2 एंड 3। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन भी 3। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हम गलती कर सकते हैं, नेसेसिटी है तभी हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेना है। दो कांस्टेंट है तो दोनों के बदले कोई एक हम कांस्टेंट ले सकते हैं, है ना दोस्तों। देखा ना आपने, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए क्लियर है, एकदम से क्लियर, ओके। नए क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। डिग्री, ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ differential equation of system of curves
फैमिली ऑफ कर्व्स, सिस्टम कह सकते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c इंटू एक्स प्लस अंडर रूट सी इज ब्लैंक। देखिए दोस्तों, यहां पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c, इसीलिए हम ये तो कह सकते हैं कि ऑर्डर 1 होगा, ऑर्डर 1 होगा, लेकिन डिग्री के बारे में हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंशियल, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक बात तो होता है कि एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2c, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, c का डिफरेंशिएशन 1 प्लस रूट c का क्या होगा 0। यहाँ से 2 कैंसल, देयरफॉर c इज इक्वल टू व्हाट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पुट इट इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c, c के बदले y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस अंडर रूट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स को हम कहेंगे y डैश, सिंपल करने के लिए, प्लस x इंटू अंडर रूट वाई इंटू वाई डैश। वाई डैश की जो भी हमें पावर है वो इंटीजर में लानी है। यहाँ पर स्क्वायर रूट दिख रहा है, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये पूरा स्क्वायर रूट नहीं है, सिर्फ यही स्क्वायर रूट है। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2xy, वैसे तो y यहाँ पर कट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर y डैश है इसीलिए हम साथ में लेते हैं, प्लस 2 इंटू y डैश की, यहाँ पर पावर 1/2, यहाँ पर पावर 1 है तो पावर रहेगी 3/2। वाई स्क्वेयर माइनस 2x y डैश इज इक्वल टू 2 इंटू y डैश रेज टू पावर 3/2। टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स, y स्क्वायर माइनस 2x y डैश रेज टू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, y डैश रेज टू 3। अब यहाँ पर y डैश की पावर, इसे हम एक्सपांड भी करेंगे तभी यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 रहेगी, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है 3 है, दिखाई देता है दोस्तों। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स दिस इज 3। ऑर्डर तो पता चल ही जाता है, लेकिन डिग्री के बारे में हमें जानना है, तो डिग्री हमें इस तरह से मिलेगी और वो क्या होगी, डिग्री होगी 3। चलिए दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन y इज इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ लॉग x प्लस b इंटू साइन लॉग x, इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज x स्क्वायर y2 प्लस ब्लैंक प्लस y इज इक्वल टू 0।
ये है y2 का मतलब है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, क्योंकि इट हैज़ टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में ये ब्लैंक फुलफिल करनी है। सबसे पहले हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ वन, इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। y का होगा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज y1। a कांस्टेंट माइनस साइन log x का क्या होगा 1/x। b साइन का होगा cos log x क्या होगा 1/x। x y1 इज इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x इंटू वाई टू प्लस y1 और x का डेरिवेटिव होगा 1। ध्यान से देखिए दोस्तों, इन दोनों का राइट साइड में माइनस a साइन का होगा cos log x डिवाइड बाई x, फिर cos का होगा माइनस साइन log x एंड log x का होगा 1/x। x यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस कॉमन a इंटू कॉस ऑफ log x प्लस b इंटू साइन ऑफ log x। इसे तो हम पहचानते ही है, इट्स अ y। सो एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस y। Therefore x square y2 plus xy1 plus y is equal to 0. It's a differential equation of the given solution. क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों कि हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो जनरल सॉल्यूशन या तो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाना होगा। जनरल सॉल्यूशन है तो उसके ऊपर से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना होगा। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे दोस्तों। कभी कभी हमें क्या फाइंड करना होता है, तो डिग्री फाइंड करनी होती है या तो फिर ऑर्डर फाइंड करना होता है। ऐसे टाइप के एमसीक्यू बनते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इज इक्वल टू e रेज टू सी एक्स इज ब्लैंक। इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। वेरी सिंपल। तो क्या होगा y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू सी एक्स इंटू सी। अब ध्यान दीजिए, ई रेज टू सी एक्स का मतलब क्या है y है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी इंटू वाई। देयरफॉर c is equal to dy by dx upon y. Put in main equation y is equal to e raised to dy by dx upon y. ये कोई पर्टिकुलर ऐसा फंक्शन है नहीं एज अ पोलिनोमियल फॉर्म में, तो हम दोनों साइड log लेंगे तो log y टू द बेस e इज इक्वल टू dy by dx upon y. Therefore y into log y to the base e is equal to dy by dx। ये होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट बाय y इज इक्वल टू ई रेज टू सी एक्स। हमने क्या किया, तो ये जो वैल्यू है c को रिप्लेस किया। तो यही हमें समझना है, अच्छी तरह से समझना है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चंस है हमें क्लियर करने हैं। चलिए एक और लास्ट आखिरी क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे आज, है ना। तो देख लेते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं अभी।
अच्छा, JEE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, JEE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, वो क्या है? तो फंक्शन f फ्रॉम 0 1 to r एंड f of x y इज इक्वल टू f of x इंटू f of y, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। फॉर ऑल x y विच आर बिलोंग्स टू फ्रॉम डोमेन 0 to 1 एंड f of 0 be never equal to 0 if equation y is equal to fx is satisfied, differential equation dy by dx is equal to fx. This equation satisfied differential equation is this, and y of 0 is equal to 1. It means when x is equal to 0, then y is equal to 1. Then we have to find y of 1 by 4 plus y of 3 by 4 is equal to what? सबसे पहले दोस्तों हियर f ऑफ x y मतलब x इंटू वाई, इसका मतलब होगा नॉट कॉमा x इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। और सबसे पहले हमें लेना होगा y कुछ भी है या तो फिर x y दोनों जीरो लेते हैं, क्योंकि बोथ कंसीडर फ्रॉम 0 to 1 as well as 0 and 1. f of 0 plus 0 is equal to f of 0 into f of 0. तो f of 0 is equal to f of 0 whole square. f of 0 into f of 0 means f of 0 whole square. f of 0 whole square minus f of 0, या तो फिर ऐसा न करके, हालांकि ऐसा कर सकते हैं कॉमन लेकर के, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक पावर दोनों साइड हम कैंसिल कर लेंगे, तो 1 पावर कैंसिल होगी यहाँ पर। सो f of 0 इज इक्वल टू 1. f of 0 इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली यहाँ पर नहीं लेना है, f of 0 नेवर बी 0। तो सबसे पहले में क्या मिला, f of 0 इज इक्वल टू 1 मिला। Okay, sorry. If if y is equal to 0, then इस इक्वेशन में f of x into y is equal to f of x into f of 0, बट f of 0 इज इक्वल टू 1, y यहाँ पर 0 है तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू f of x इंटू 1। चलिए f of x इज इक्वल टू 1 यहाँ से हमें मिल गया, दो बातें यहाँ पर क्लियर हो गई दोस्तों। अब dy by dx इज इक्वल टू एफ एक्स है, मीन्स 1 है, dy by dx is equal to f of x, but f of x is equal to 1। तो ये कह सकते हैं dy is equal to dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy is equal to इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन y होगा, इसका इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट c रहेगा, y of 0 is equal to 1, if x is equal to 0 then y is equal to 1, so c is equal to also 1। Put it in equation number 2, तो y is equal to y, y के बदले अच्छा y रखेंगे, सिर्फ c के बदले हम 1 लेंगे, तो हमें एक इक्वेशन मिला है। एंड व्हाट इज y? y मीन्स f of x, तो ये है f of x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, f of
1/4 plus f of 3/4 is equal to 1/4 plus 1, 3/4 plus 1. इन दोनों में एलसीएम सेम है तो 3 plus 1 4/4 plus 1 plus 1 2, 1 plus 2 which is 3 है ना। आपके लिए ये यहाँ पर टॉपिक नया है, अच्छी तरह देख लीजिए दोस्तों। पहले x y का रिलेशन फुलफिल किया तो ऐसा क्वेश्चन JEE में पूछा गया था। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होगा, है ना। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये पूछा हो कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ना। देख लेते हैं क्वेश्चन, ऐसा भी ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह पता भी चल जाए कि ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है। चलिए देख लेते हैं। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 plus 1 upon x plus y plus 2, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ब्लैंक। तो सबसे पहले हम इसे कंप्लीट कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये है कि इसे स्प्लिट और सेपरेट नहीं कर सकते। सो dx by dy इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 2, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए dx by dy है तो यहाँ पर x वाला टर्म हमें चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सो dx अपन dy माइनस x इज इक्वल टू y प्लस 2। तो यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको दिखा देता हूँ, dx by dy प्लस p1x is equal to q1. Here p1 is equal to -1 and q1 is equal to y plus 2. इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e raised to इंटीग्रेशन p1 dy, है ना। So e raised to -1 into dy means e raised to -y. So e raised to -y become integrating factor of the given function. क्लियर दोस्तों, मुझसे भी आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो और भी आप क्लियर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में सिर्फ इतना ही। आप अच्छी प्रैक्टिस करें और आगे बढ़िए। नेक्स्ट सेशन से हम नया चैप्टर नंबर 10 शुरू करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? ओके, थैंक यू वेरी मच।